Morning to one and all class 11th. Welcome to your TSN English class. Today we'll start the fourth video of this chapter number 4, Albert Einstein at School. So this chapter is written by Patrick Pringle, and we have read previously that Albert Einstein was an intelligent and frank student in his schooling, and his teacher would ask him certain questions from historical date, and after hearing those questions, so he used to say about that history teacher, I did not pay heed in learning these days because I took interest in causes and incident and events. So here in this chapter previously we have read that एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो ये कह रहे हैं अपने टीचर को, हिस्ट्री टीचर को, कि इंस्टेड ऑफ दीज डेट्स I am quite more interested in events and incidents, and these were the most important points for Albert Einstein. So the teacher became very angry on his reply, and he was also good at mathematics and science. But still, the teacher also became angry on his reply, and he demanded a reference. And after that, when Albert decided that okay, I don't want to continue the school, and for that I need he got an idea that for that he need a doctor who recommends him that for like that he could get rid of school for like about 6 months. So that was a good period, and it would be possible for him to come back school and continue that diploma. So he with the help of his friend, one of his friend Yuri, he kind of quite tried to manage that okay, somehow कि जो उसकी स्टडीज़ हैं वो जो है कुछ समय के लिए वो डिसकंटिन्यू कर दे, और वो जहाँ वो जो वो करना चाहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन वो कर लें. एंड आफ्टर दैट एक दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है सो फॉर दैट ही डिमांडेड अ रेफरेंस सर्टिफिकेट in his mathematics about his work, and then he because entered the college and university institute to higher studies, and the science teacher also gave him the doctorate certificate and said him that best of luck. And your let's see what happens up next. So students, come to page number 30 of your chapter. Here is your page number 30. I can't imagine a doctor saying that, said Yuri. Sorry, this one, page number 20. Page number 30. So isn't it wonderful, he said after showing Yuri the certificate. Yes, it's fine, Yuri agreed. 6 months is a good period. So students, what happens up next? That isn't it wonderful, he said after showing Yuri. जब उसे डॉक्टर से फाइनली वो मेडिकल अप्रूवल या वो सर्टिफिकेट मिल जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को, तो वो ये सर्टिफिकेट किसको दिखाते हैं? यूरी को. दैट यूरी, you can't believe that I have that certificate of that I am not able to like attend the school for like about 6 months or like that. So yes, it's fine, Yuri agreed. 6 months is a good period. So Yuri कहते हैं कि okay, yes, बिल्कुल ठीक है, अगर तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया, 6 months is a good period. This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come to school, come to back and carry ऑन फॉर योर डिप्लोमा. एंड यूरी उसे सजेस्ट करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 6 मंथ्स इज़ अ गुड टाइम. और अगर ऐसा होता है कि 6 मंथ्स में तुम वहाँ एडजस्ट हो जाते हो मिलान में अपने फादर के, तो ठीक है. अगर एडजस्ट नहीं हो पाते हो तो यू हैव अनदर ऑप्शन हियर कि तुम यहाँ वापस आके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो, और कंटिन्यू फॉर योर लाइक इट इज़ गुड फॉर योर डिप्लोमा. I will never go back to that place, Albert assured him. I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow, and that will be end of it. So Albert Einstein यूरी को अश्योर करता है दैट मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आने वाला. आई एम गोइंग टू टेक द सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो. मैं कल हेड टीचर से जो है अपना सर्टिफिकेट ले लूँगा, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. और फिर ये मेरी स्टडीज़ का जो है वो एंड होगा एक तरीके से.
सो इस तरह ये जो यूरी हैं और एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं वो आपस में एक दूसरे से कॉन्वर्जेसन में बात कर रहे हैं कि क्या उसे आगे जो है स्कूल छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए. सो व्हाट विल बी अप नेक्स्ट फॉर देम. सो लेट्स स्टूडेंट्स रीड द नेक्स्ट वन. डोंट फॉरगेट to get a reference and writing from your mathematics first, Yuri reminded him. So Yuri remind करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, don't forget to get a reference and writing from your mathematics teacher. तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हें मैथमेटिक्स टीचर से अपना जो रेफरेंस वाला सर्टिफिकेट है वो लेना है. मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted. और मिस्टर कोच जो है एल्बर्ट को वही जो वो चाहता है वही सब कुछ या वैसा ही सर्टिफिकेट उसे बनाकर देंगे. सो ऐसा वो कह रहे हैं कि मिस्टर कोच जो है वो ऐसा ही सर्टिफिकेट उसे बनाकर दें, या यू कैन से दैट ऐसा प्रमाण पत्र काइंड ऑफ उसे बनाकर दें जो कि उसके फर्दर स्टडीज़ में हेल्प करेगा एल्बर्ट आइंस्टाइन की. सो if I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right, he asked. So वो क्या कहते हैं, if I say I can't teach you anymore, तो वो क्या कहते हैं उसके सर कि मैं अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुमको और आगे नहीं पढ़ा सकता. ऐसा क्यों? बिकॉज प्रोबेबली तुम जो है वो मुझे कुछ सिखा सकते हो. क्या ये सही है? सो दिस इज़ लाइक यू कैन से दैट. सो दैट सेइंग टू मच सर सेड एल्बर्ट. तो एल्बर्ट अपने टीचर को कहते हैं, मैथमेटिक्स टीचर को, दैट सर यू आर सेइंग टू मच अबाउट मी, आई एम नॉट दैट मच गुड इन मैथमेटिक्स. आप मुझे बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग. सो लेट्स रीड द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लाइन. It is only the truth, but all right, I will put it more seriously. So वो कहते हैं जो उसके टीचर होते हैं मिस्टर कोच कि नहीं, मैं तुम्हें एक सच बता रहा हूँ और तुम्हें इस सच को सीरियस ले लेना चाहिए कि तुम सच में मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो. It was still glowing reference and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. And Mr. Koch अपना पॉइंट क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो है कि तो मिस्टर कोच ने अपना पॉइंट क्या क्लियर किया कि एल्बर्ट तुम जो हो वो मैथमेटिक्स में इतने अच्छे हो कि तुम अब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हो या अपने आप को वहाँ जाके हायर स्टडीज़ के लिए तुम एडमिशन ले सकते हो. आई एम सॉरी you are leaving us, although you are wasting your time in my wasting your time in my class, he said. So उनके टीचर क्या कह रहे हैं, आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास. तो सर कह रहे हैं कि मैं बहुत बैड फील कर रहा हूँ कि तुम जो है हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हो और तुम्हें ये लगता होगा कि तुमने अपना जो टाइम है मेरी क्लास में अपना टाइम वेस्ट करा है. ऐसा कौन कह रहे हैं? मिस्टर कोच कह रहे हैं. इट्स ऑलमोस्ट ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, said Albert, but how did you know I'm leaving, sir? So एल्बर्ट आइंस्टाइन के टीचर जब ये सब कुछ कहते हैं कि दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, तो एल्बर्ट उन्हें कहते हैं सर केवल आप ही की मैथमेटिक्स की ये क्लास है जहाँ पे मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा है बल्कि यूटिलाइज करा है. सो बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर. तो अब वो सर से पूछता है सर आपको कैसे पता चला कि मैं स्कूल छोड़ने वाला हूँ. यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज आई थॉट यू डू वंडर. तो सर कहते हैं कि अगर तुम स्कूल छोड़ने नहीं वाले होते तो तुम मुझसे इस तरीके का कोई रेफरेंस की डिमांड नहीं कर पाते. आई थॉट यू डू वंडर. तो एल्बर्ट कहता है कि मुझे लगा कि आपने तो वंडर कर दिया, बिना मेरे बोले ही आपको सब कुछ पता चल गया कि मैं स्कूल छोड़ने वाला हूँ. देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन. आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ. सो सर कहते हैं उनके मिस्टर कोच कि देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट. इसमें ऐसा इतना चौंकने वाली या इतनी कोई ऐसी बात नहीं है आइंस्टाइन. आई नो यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ. तो मुझे पता था जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे तुम ये जगह छोड़ दोगे. एल्बर्ट वॉज पजल्ड बट वॉट डिड द टीचर मीन. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन 2 मिनट के लिए थोड़ा पजल हो जाते हैं कि टीचर कहना क्या चाहते हैं उनसे. एंड स्टूडेंट्स
मीन इट दैट एक टीचर जो होता है वो स्टूडेंट को बहुत अच्छे से जानता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल, बिकॉज स्टूडेंट क्या सोचता है क्या करता है, टीचर उस पर 6 आवर्स जो या 6 आवर्स या डेली जो टीचर्स मिलते हैं 1 आवर हाफ एन आवर जो भी अपने स्टूडेंट से मिलते हैं, वो आफ्टर 1 or 2 ईयर अपने स्टूडेंट्स को इतना अच्छे से जानने लगते हैं कि आपकी हर एक एक्टिविटी से टीचर पहचान लेता है. So he soon found out before he had chance to ask for an interview with the head teacher. So let's come to the chapter. So he soon found out before he had a chance to ask for an interview with the head teacher. So वो जल्द ही पता कर लेते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, जबकि उन्हें किसके पास जाना पड़ता है, हेड टीचर के पास. सो ही समन टू हेड रूम, तो उन्हें हेड रूम में बुलाया जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को. एंड वेल इट सेव्स मी ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और 2 आउटसाइड ही थॉट. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन सोचते हैं अच्छा है मुझे 1 or 2 आवर वेट करना पड़ता है यहाँ से, सो दिस वुड बी मच मोर बेटर कि मैं पहले ही चला जाऊंगा. सो ही हार्डली बॉर्डर टू वंडर वाई ही हैड बिन सेंट फॉर, बट वेगली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस. Well, he had finished with punishments. So here Albert Einstein thinks that he hardly. So here he said that he hardly bothered, wonder why he had been sent for. But अब उन्हें ये नहीं पता था कि मैं क्यों अंदर जाने वाला हूँ, तो वो सोचते हैं कि okay somebody will punish me or like that something will be there. So हो सकता है वो उन्हें पनिश करे या कुछ करे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है. उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली होती है, उन्हें ये पता भी नहीं होता. उन्हें लगता है कि मेरी लेजीनेस के लिए या मेरे इसके लिए मुझे पनिश करने वाले हैं, बट ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट. बट वो माइंड में ये भी सोचते हैं कि ओके अब मेरे पनिशमेंट्स का एंड होने वाला है फाइनली, क्योंकि मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ. सो आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज. मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा, हेड टीचर एल्बर्ट को सरप्राइजिंगली ऐसे कहते हैं. So this is like a shock for Albert Einstein. Your work is terrible and I'm not prepared to have you here any longer. और अब हेड टीचर बिल्कुल ऑपोजिट, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो सोचते हैं उससे ऑपोजिट बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा टेरिबल स्टूडेंट हो और तुम बहुत अनग्रेटफुल हो अपनी चीज़ों के प्रति. दैट इज़ वाई आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर. इसलिए मैं तुम्हें इस इंस्टीट्यूट में और ज़्यादा नहीं रख सकता आइंस्टाइन. आई वॉन्ट यू टू लीव दिस स्कूल नाउ. मैं चाहता हूँ कि तुम ये स्कूल अभी छोड़ दो. लीव स्कूल नाउ रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड. सो उसी वक्त एल्बर्ट बहुत ही शॉकिंग होके उनकी तरफ देखते हैं कि अभी स्कूल छोड़ दो. दैट इज़ वॉट आई सेड. यू मीन सेड एल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं सर व्हाट डू यू मीन, क्या आप मुझे यहाँ से एक्सपेल कर रहे हैं. सो एल्बर्ट वापस से ये कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं कि सर क्या आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं. मतलब उसके बिल्कुल ऑपोजिट. वो अभी उसको क्या लगने वाला होता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को लगने वाला होता है दैट वो वहाँ जाएंगे और वो वहाँ जाके अपने टीचर को या प्रिंसिपल को बोलेंगे कि ओके आई एम लीविंग दिस स्कूल एंड दिस एंड दैट. बट उल्टा ऑपोजिट हो जाता है कि अब वहाँ से उसे कह दिया जाता है कि हम तुम्हें इस स्कूल में नहीं रखना चाहते हैं एंड यू हैव टू लीव द school. So student, your video is will be end here. So till then stay safe all of you, and we'll continue the next part of our chapter in our next video. Thank you all. Till then stay safe and happy all of you.